لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا۔ چنانچہ یسایہ کہتا ہے کہ خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اور اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنی و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ان کی برکت آئے۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میرے ساتھ نکالیے گا بزرگ پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث۔ بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ ابھی میں آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ دعوت دوں گا جے سالک صاحب کو کہ وہ آئیں اور سارے کلام کے اوپر جتنی بھی آیات پڑھی گئی ان پر روشنی ڈالیں۔ جے سالک صاحب جو آپ کی بھرپور تالیاں جو ہیں وہ بجتی رہنی چاہیے۔ عظیم پرفضل جلالی نام میں میری طرف سے آپ سبوں کو بہت بہت سلام پہنچے۔ خدا کے مقدس کلام میں سے پالوس رسول کا خط پہلا کرنتھیوں اس کا 16واں باب اس کی 13ویں آیت بیان کروں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے سمجھے جانے پر ہم سبوں کی خدا کی برکت ہو۔ آج کے جو میری رویا ہے سالک صاحب کے لیے، سب خادموں کے لیے یہ ہے کہ خداوند کے پاک کلام میں دیکھیں، یسایہ نبی کی کتاب 43 باب کی پہلی آیت ہے۔ خداوند جب کسی کو بلا لیتا ہے اس کا نام لے کر بلاتا ہے۔ اسے کہنا، آئی کو میں نے جس نے تیرا نام لے کر بلا لیا ہے تو میرا ہے، اب تو ساتھ میں چلے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ مطلب تجھے نہ ڈبوئیں گی، نہ تجھے آگ لگے گی، نہ کوئی آگ لگے گی، نہ کوئی ایسی وبا آئے گی۔ خداوند اپنے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یسوع نے کی کتاب، یسایہ نے بھی کتاب جب آپ اس 15 سے لکھا ہے، کیا ممکن ہے ایک خاص کر خدا نے سارے کے ساتھ یہ مجھے پیغام دیا ہے کہ کیا ممکن ہے کوئی شیر خوار بچے کو اپنی ماں بھول جائے یا اپنے فرزند پر رحم نہ کرے؟ ہاں، وہ کہتا ہے تیری ماں بھول جائے میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ خداوند نے وعدہ کیا ہے، میں نے تیرا نام رکھا، میں تیرا نام اپنی تھیلی پر رکھ لیا ہے، میں تیری صورت اپنی تھیلی پر کھود لی ہے، تجھ پر کوئی مصیبت نہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنی تعلیم دے رہے تھے تو ایک کنعانی عورت اس سے آ کر کہتی ہے، اپنی بیٹی کے لیے اس نے اسے شفا کے لیے جب پکارا تو یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا نہیں کہ بچوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دی جائے، لیکن اس نے کہا کہ اے مالک، کہ جب وہ ٹکڑے جو اس کی میز سے گرتے ہیں کتے بھی انہی میں سے کھاتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آج جب ہم اس جمع ہوئے ہیں اس کے حضور سب، تو اس ایمان سے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو رہبر ہیں آگے لگے ہوئے ہیں اور ہمیں وہ ان نعمتوں سے آسودہ کریں گے جن کی ہمیں ضروریات ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔
पहला सलातीन उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं उस नबी के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसे खुदावंद ने जिंदा आसमान पर उठाया। और एलिया तशबी जो जलाद के परदेशियों में से था, अखियब से कहा, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में ना तो ओस पड़ेगी और ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। आमीन। खुदावंद के जिंदा और पुरफजल कलाम के वसीला से आप सब की सलामती हो। बहुत शुक्रिया पास्टर। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। रोमियो का खत उसका 5 बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। बस जब ईमान से हम रास्तबाज ठहरे तो खुदावंद के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सलामती हो। रोमियो का खत है और उसका पहला बाब और 17 आयत है। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती रहे, और इस वास्ते इसलिए लिखा है कि रास्तबाजी ईमान से जाती ना रहेगी। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर भाई से बरकत हो। आमीन। बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी आप जो हैं पास्टर जुवेद ताला साहब जो हैं वो आप सबके सामने ईमान पर जो हैं वो एक आयत पढ़ेंगे। अलमसीह के ला तब्दील नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए किताब मुकद्दस में से यूहन्ना का पहला खत 5वां बाब और 5वीं आयत की मैं आपके दरमियान में तलावत करने की शहादत हासिल करूंगा। तवज्जो मरकूज रहे। यूहन्ना का पहला खत 5वां बाब और 5वीं आयत। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने और समझे वसीले से हम सबको बरकत मिले जी। आमीन। अली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। कलाम अक़दस में से इब्रानियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 12 बाब और उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा तिलावत होगी। तो मुझे मरकूज कीजिएगा। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेरान ना हो बल्कि शिफा पाए। पाकलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। सब कहें आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तो हम खुदावंद का शुक्रगुजार है। आज हम यहाँ पर जब जमा हुए हैं तो ईमान की बदौलत ही जमा हुए हैं। तो आज जो मैं आपके सामने ईमान पर आयत पढ़ने को हूँ, तो हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से रोमी बुजुर्ग पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 10 बाब और उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा से मैं आपके सामने तिलावत पढ़ूंगा। खुदा के कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है, चुनाचा किताब मुक़द्दस जो कुछ कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। बहुत शुक्रिया सर। असल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के कलाम में 10 में से देखेंगे हम इब्रानियों के नाम खत उसका 11वां बाब और उसकी 29 आयत को हम पढ़ेंगे। सब बड़े गौर से सुनेंगे, बल्कि मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ मिलकर इस आयत को पढ़ें। मैं आगे पढ़ूंगा और आप सब लोग पढ़ेंगे मेरे साथ। ईमान ही से वो बहरे कुलजम से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क जमीन पर से, और जब मिस्रियों ने ये कसब किया तो डूब गए। सब कहे आमीन। खुदा के कलाम में जो हमने पढ़ा है,
खुदा का कलाम बताता है कि इसराइली जो है अपने ईमान के सबब से उस बहरे कुलसम में से खुश्क ज़मीन में से होकर गुजरे। अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ इस कलाम को, अगर आपका ईमान है तो आप इस अंधेरे में से निकलेंगे और रोशनी को देखेंगे। मैंने कहा आपका ईमान ऊंचा तो आप रोशनी देखेंगे, आप रोशनी देखेंगे यीशु के नाम से। आपका आमीन छोटा, अभी भी छोटा है आपका आमीन। मैंने कहा आप रोशनी देखेंगे। हालेलुया। सुने और आपको वो पीछे ख्यालात आ रहे होंगे, घर के सामान के, हांडी दे टुकर दे आ रहे ने। और केड़ी सी जड़ी पीछे वेखदी पई सी, केड़ी सी? लूत दी बीवी ते की बन गई सी? हुण तुसी यसू कोलों लेना ही लेना है। किन्ने बरकत लई सी यसू कोलों? जिद दे नाल किन्ने लई सी? किन्ने लई सी? जबरदस्ती असी इरादे यसू दे इरादे भी बदले रहे। नैनो यार यसू दे इरादे बदल दे लोगों दे सिर ते। लिहाजा केड़ा केड़ा करदा फिक्र नहीं कर रहे, हाथ खड़ा करे। और केड़ा केड़ा भुख दा फिक्र नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा भुख दा फिक्र। चलो अभी आप सबके सामने सबकी सलामती हो। पलूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 10 बाब, उसकी 10 और 11 है। चूँकि रास्तबाज के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चनाचे किताब मुक़द्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। खुदाम का पाकलाम पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जनाब सबके लिए बाइस बरकत हो। मसीह में आपकी सलामती हो, खुदा आपके साथ हो। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत की हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। बहुत शुक्रिया सर। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी हुई इंजील उसका 12 बाब उसकी 36 आयत में लिखा है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उन सब अपने आप को छुपा लिया। खुदा की पाक कलाम पढ़े और समझा पर खुदा उनकी बरकत हो। थैंक यू। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी हुई इंजील उसका 12 बाब उसकी 36 आयत में लिखा है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उन सब अपने आप को छुपा लिया। खुदा की पाक कलाम पढ़े और समझा पर खुदा उनकी बरकत हो। थैंक यू। जलाली पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। ईमान के वसीला से इब्रानियों का खत उसका 11 बाब उसकी 5वीं आयत का मुकद्दस में यूँ लिखा है, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए और कि वह मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। इस्लाम मैं आपके सामने लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसके 18वें बाब में से 30वीं और 40 से 43 आयत पढ़ूंगा। यीशु ने खड़े हो हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उससे पूछा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, खुदावंद मैं ये चाहता हूं कि बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने वाले पर खुदावंद की बरकत। आमीन। बरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। ग्रंथस के नाम पलूस रसूल का पहला अहम खत उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, गर्ज ईमान अमीद मोहब्बत
ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। बहुत शुक्रिया। जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। सो खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मरकज़ की अंजील है, उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, आमीन। अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब उसकी 29वीं आयत पढ़ेंगे। ईमान ही से वो बहरे कुलजम से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क ज़मीन पर से, और जब मिस्रियों ने ये कसद किया तो डूब गए। आमीन। मैं आप सबके सामने खुदा के मुकद्दस कलाम में से इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत पढ़ूंगा। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। खुदा इस कलाम पे पढ़ें और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। कौन कौन जो है हमारे कलाम को जो सुन रहा है, कैसे उगेगा या झाड़ियों में गिरेगा या पथरीली जमीन पर, जरा खड़े होकर बताए, ताकि आपकी चुस्ती जो है हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे लिए कितना मुश्किल काम होगा कि मैंने वो सुनना है कि जो कितनी कलाम की आयतें तो सारी गुजरती जा रही हैं। अब मेरे लिए कितना मरला होगा। अब मैं भी गौर कर रहा हूँ, आप भी गौर करें कि आगे, लेकिन गौर करेंगे, ठीक है? गौर से कलाम सुनेंगे और आमीन जब होगी तो समझेंगे कि आप गौर कर रहे हैं। आमीन, ठीक है? हालेलुया। दोष की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और वो खुदावन पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाज शुमार किया। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब कहे आमीन। खुदावन की कलाम अक़दस में से एलान कुशाई करने का मौका मिला, तो आपके सामने मैं कलाम अक़दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 22 बाब और उसकी 32 आयत तिलावत करूंगा। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। पतरस रसूल का पहला खत और उसका पहला बाब और 7वीं आयत से, और ये मेरी दिली दुआ भी है कि खुदा ऐसा ही करे हमारी ज़िंदगियों में। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज़्ज़त का बाइस ठहरे। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी बनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। आमीन। बहुत शुक्रिया सर आपका। ज़बूर 141 में लिखा है कि मुबारक है वो जो गरीबों का ख्याल रखते हैं और गलतियों का खातिर। उसका 6वां बाब 2री आयत में लिखा है कि एक दूसरे का भार उठाया करो और यूं ही मसीह की शरीयत को पूरा किया करो। पहली शरीयत जो यहाँ इस्लामाबाद में पूरी हुई
वो जैसालक के अमान के साथ बिजली हमें मिली है। 5 कानूनियों के अंदर जैसालक और सिस्टर मेरी जिनके साथ मैंने झगड़ा किया और ईमान के साथ हजरात हमने 5 कानूनियों के अंदर उनके वसीला से ज़बूर 141 में लिखा है कि मुबारक है वो जो गरीबों का ख्याल रखते हैं और गलतियों का खातिर उसका छठा बाब दूसरी आयत में लिखा है कि एक दूसरे का भार उठाया करो और यूं ही मसीह की शरीयत को पूरा किया करो। पहली शरीयत जो यहाँ इस्लामाबाद में पूरी हुई वो जैसालक के अमान के साथ बिजली हमें मिली है। 5 कानूनियों के अंदर जैसालक और सिस्टर मेरी जिनके साथ मैंने झगड़ा किया और ईमान के साथ हजरात हमने 5 कानूनियों के अंदर उनके वसीला से कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन आमीन। बरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिमोथियुस रसूल के नाम लिखा गया पहला आम खत उसका छठा बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं मरकूम है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। मसीह यीशु के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के कलाम में मुकद्दस में से देखेंगे रसूलों के अमाल 16वां बाब और 31वीं आयत मुकद्दसा से हम स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। के नाम पौलुस रसूल का खत उसका पहला बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आमीन।